Hello to all the beautiful people out there. My name is Ritu and I currently fly with Indigo as a flight attendant. That means a cabin crew. So I post videos on YouTube related to cabin crew interview questions and my layover vlogs. And if you are somebody who is interested in aviation and want to get in as a cabin crew or as a ground staff, you can subscribe to my channel because I keep coming up with such latest vacancies and interview questions. So if you want to get it also, if you also want to get an insight of what is happening actually in airline, like I am in Indigo, so I can only tell you about Indigo, what is happening, how are the flights, going on, and all this stuff. Agar aap interested ho, you can subscribe to my channel. And as I already told you, my next video is going to be how to make a resume, a good resume or a CV for candidates who want to go in aviation as a cabin crew, those who are looking for how to make a resume. Because already, though I already have made a video on this topic, but still like people are confused. So इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बना देती हूँ. Also I had ample of time today. So yes, I am back with this video and stay tuned. If you want your resume to stand out and be selected, then you can watch this video. This is going to be a very great help for you all. I bet you on that. So without any further chopper, let's get into it. How do you make a good resume with a beautiful template? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको अपना रेज्यूमे बनाने के लिए, रेज्यूमे क्या होता है और एक सीवी क्या होता है, बिकॉज पीपल आर स्टिल कंफ्यूज कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. कुछ लोग रेज्यूमे बोलते हैं, कुछ लोग सीवी बोलते हैं. एक्चुअली ये दोनों चीज़ें होती क्या है, लेट मी स्टार्ट विद दैट एंड देन आई एम गोइंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली टेल यू कि किस तरह से बनाना है, क्या डालना है उसमें. ठीक है, तो रेज्यूमे क्या होता है. सपोज यू आर अ फ्रेशर, आई जस्ट केम आउट ऑफ ग्रेजुएशन एंड आई एम अ फ्रेशर. तो मेरा जो रेज्यूमे होगा, जिस पे मैं अपना नाम लिखूंगी, अपनी ईमेल आईडी, अपना एक्सपीरियंस एज एन क्वालिफिकेशन, या फिर इफ़ आई हैव एनी एक्सपीरियंस वो डालूंगी. उसको कहते हैं रेज्यूमे. व्हेन आई एम अ फ्रेशर, आई डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस. तो ऐसा बंदा जो एक फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका जो डेटा होएगा उसको बोलेंगे रेज्यूमे. ऑलराइट. एंड एक सीवी क्या होता है. सीवी इज़ फॉर सच अ पर्सन जिनको प्रायर एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ऑलरेडी जो लोग काम करके आ चुके हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, भले ही 6 महीने का क्यों ना हो. तो जो बंदा वो उस कागज़ को लेके आएगा अपनी डिटेल्स के साथ, उसमें बायोडेटा एज एन उसका सिर्फ एक्सपीरियंस वाला. सो वो जो होगा उस कागज़ को हम बोलेंगे सीवी. सो रेज्यूमे स्टैंड्स फॉर फ्रेशर्स एंड सीवी स्टैंड्स फॉर experienced people. Whether you are a fresher, whether you are somebody who has experienced in any of the industry, how to make a resume or a CV, I will tell you now. कौन सी, देखो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे people pay a certain amount to make a good resume with a beautiful template, because काफ़ी सारी paid applications हैं जो आपको अच्छे अच्छे templates offer करती हैं. However, they ask you a certain amount of money, but the method that I'm going to tell you, it is free of cost. This is the one of the best applications that I use personally for even videos and for making my resume. I'll show you a glimpse of my resume जो मैंने submit किया था and which got selected every time. ये resume ऐसा है जो जहाँ पे भी मैं डालती हूँ, it gets selected every time. सबसे पहले आपको चीज़ ध्यान रखनी, it can be विद और विदाउट अ पिक्चर. काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दी इसमें पिक्चर डालना है अपना या नहीं. देखो, इट इज़ टोटली अप टू यू. आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, बट आई प्रेफर इट विद अ पिक्चर. अगर आपके पास फॉर्मल अटायर में एक अच्छी सी पिक्चर है जिसमें आप अच्छे लग रहे हो, अप्रोचेबल लग रहे हो, विद द स्वीट स्माइल ऑन योर फेस, अगर आपके पास ऐसे पिक्चर है तो आप फोटो वाला लगा लीजिए, वरना बिना फोटो के. बनाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, कैनवा. देखो, जो मैं यूज़ करती हूँ, जो जिससे मैं बनाती हूँ, मैं आपको वही बता सकती हूँ. बाकी सब लोग कौन कौन से कहाँ से क्या क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता. ठीक है, जो मैं करती हूँ वही मैं बता सकती हूँ ना आपको. तो अब मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि भाई इसने तो, इस लड़की ने तो ऐसा रेज्यूमे बनाया था, इसका तो आपसे अच्छा है, आप इसका तो सिलेक्ट हो गया. मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है, किसका रेज्यूमे कैसा, आई डोंट नो. जो मैं कर रही हूँ मुझे वही पता है. आई डोंट केयर व्हाट अदर्स आर डूइंग और ब्ला ब्ला ब्लू. सो व्हाटएवर, लीव दिस शिट असाइड. आपने जाना है कैनवा पे.
कैनवा पे आपको सिंपली सर्च करना है कि रेज्यूमे टेम्पलेट्स, वहाँ पे आपको मोर देन कैनवा ऑफर्स मोर देन हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट्स विच लुक्स ब्यूटिफुल एंड दे लुक सो प्रोफेशनल कि आपका मन करेगा कि मैं हर टेम्पलेट को यूज़ करके अपना रेज्यूमे बना लूँ। इतनी ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स हैं। कैनवास प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, आप जाके उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पे यू हैव टू गैदर योर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अपना आपको दो चीज़ें करनी है साइमल्टेनियसली। कैनवा खोलना है आपने, और आपने खोलना है चैट जीपीटी। क्रोम में जाके चैट जीपीटी खोल लीजिए। जो भी आपका प्रोफेशन है, सपोज आई एम अ कैबिन क्रू बाय प्रोफेशन, सो आई विल राइट ऑन चैट जीपीटी कि हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ रेज्यूमे ऑफ अ कैबिन क्रू हु हैज़ प्रायर एक्सपीरियंस इन सो एंड सो इंडस्ट्री। और इफ़ यू आर फ्रेशर तो आप वहाँ पे टाइप कर लीजिएगा कि हाउ टू मेक अ रेज्यूमे फॉर फ्रेशर इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू। वो आपको जो भी लिख के देगा, ठीक है, कुछ कुछ आप मॉडिफाई भी करना है आपने। ये नहीं कि चैट जीपीटी ने जो बोल दिया धड़ाक से उठा के डाल दिया, नो। आपने उसे मॉडिफाई करना है अपने तरीके से, आपने पूरा पढ़ना है उसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप जो टेम्पलेट आपने चूज़ करी है कैनवा में, आप वहाँ पे अपना नाम बदलोगे, अपना ईमेल आईडी, अपना पर्सनल डिटेल्स जो भी है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, द प्लेस यू आर फ्रॉम, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इज़ वन थिंग, यू नो, दैट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव आपने लिखना है। जो भी चैट जीपीटी लिख के देगा आपने पढ़ के अपने उसे चेप देना है एंड अपनी तरह से मॉडिफाई करना है, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट विद योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस अगर आपको है या नहीं है, और अगर है नहीं है अगर, तो फिर आपने क्या एजुकेशन की है उसके बारे में आपने लिखना है। अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं। और बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट एवर यू आर राइटिंग इन योर रेज्यूमे, जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव। आपको दुनिया भर की स्किल्स एड ऑन नहीं करनी है, बिकॉज जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो एचआर होती है, resume is the first thing that they go through when you go for an interview, okay? So aapko, like, you have to be very careful and conscious of whatever you are writing, whatever the skills that you are writing, because if you are going for in industry that is for customer service, like मेरी industry जो है, it is highly like related to customer service, and तो मैं अपने रेज्यूमे में ऐसी स्किल्स डालूंगी जो मेरे प्रोफेशन से मैच करती हैं, भले ही मुझ में ना हो, बट मैं उस पर डालूंगी। एंड वट एवर यू आर राइटिंग, यू शुड बी केपेबल ऑफ जस्टिफाइंग ईच एंड एवरी वर्ड कि हाँ ये मैंने लिखा है बिकॉज मुझे आता है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है, इसीलिए मैंने लिखा है। वरना आपने कुछ लिख दिया रीडिंग, ठीक है, सपोज आपने रीडिंग लिख दिया, अब रिक्रूटर आपसे पूछ रहा है कि लास्ट बुक आपने कौन सी रीड करी थी, एंड यू आर जस्ट ब्लैंक, यू डोंट नो व्हाट टू से। तो जो भी आप लिख रहे हो ना, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। मुझे तो रीडिंग पसंद है, तो वो अगर मुझसे पूछेंगे मैं करंटली कौन सी बुक रीड कर रही हूँ, या फिर लास्ट बुक मैंने कौन सी रीड करी थी, मैं बता दूंगी उनको ऑथर कौन था, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दैट बुक। अगर सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो वो आपसे पूछ लेंगे विच इज़ द स्पेसिफिक स्पोर्ट दैट यू आर मेजरली इन टू, हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, वाई इज़ ही योर फेवरेट, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो आपको सब कुछ पता होना पड़ेगा, ये नहीं आप ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिख सकते अपने रेज्यूमे में, राइट? बिकॉज आई हैव सीन पीपल ब्ला ब्लू लिख देंगे एंड देन व्हेन दे गो फॉर द इंटरव्यू दे गेट रिजेक्टेड। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू जस्टिफाई द रीजन वाई हैव दे रिटन इट इन देयर रेज्यूमे। सो प्लीज़ डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक एट लीस्ट, ठीक है? सो आई होप कि ये सब क्लियर हो गया हो। जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो ना, उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी स्किल्स या क्वालिटीज़ होती हैं, आपने वो ही उसमें मेंशन करना है। एंड वो स्किल्स आप खुद पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, और आपके अंदर वो स्किल है, हाउ वुड यू जस्टिफाई इट, ये भी आपने पता होना पड़ेगा। यू विल हैव टू नो कि ये स्किल मेरे अंदर कैसे है, एंड इफ़ दे आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस, हाउ एम आई गोइंग टू आंसर इट, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल, मेजरली जो बच्चे रिजेक्ट होते हैं, whether you go for any kind of interview, not only aviation I'm talking about, if you go for corporate also,
बिकॉज दे डोंट नो व्हाट बुलशिट हैव दे रिटन. कुछ लोगों को रेज्यूमे बनाना आता नहीं है ना, तो वो किसी और से बनवाते हैं और वो कुछ भी स्किल्स लिख देते हैं और वो तो अपना रेज्यूमे उठा के चले गए. अब रिक्रूटर ने पूछ लिया उनसे एंड दे जस्ट ब्लैंक, दे डोंट नो व्हाट टू से. उनको पता ही नहीं है उसका मीनिंग क्या है. सो प्लीज़ मेक अ रेज्यूमे जिसके बारे में आपको सब कुछ पता हो बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू. जो रेज्यूमे आपने बनाया है, जस्ट गो थ्रू इट. रीड ईच एंड एवरी लाइन. आपने क्या लिखा है, कौन सी स्किल्स मेंशन की हैं, एजुकेशन क्या मेंशन की है, एक्सपीरियंस क्या मेंशन किया है. So I just hope whatever I told you in this video is cut and clear, and I hope कि थोड़ा सा भी अगर मैं help कर पाई हूँ तो just let me know in the comment section, because it really boosts me up and motivates me to make more such videos. And if you are somebody who wants to get into aviation or become a cabin crew, you can subscribe to my channel and let me know how do you like it. If you want me to make more such videos या फिर आप चाहते हो मैं किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, just let me know in the comment section. And thank you so much for watching. And अगर आप यहाँ तक आए हो, मेरी पूरी बकवास आपने सुन ली है, so like I'm really glad for that. Thank you so much and all the best for all the cabin crew aspirants. Have a great day ahead. Bye bye.